Hello students. So my YouTube channel Clear Your Doubt is going to help you with your preparation journey. Either you are a JEE mains or advanced student, you can get help for physics and mathematics. And if you are a NEET UG student, you can get help for physics. And I will explain your doubt, your question, your query with a very easy to understand manner. And so, for example, this question was asked by one of my students. This is a very good question, and I always suggest my students to do just one thing. Whenever you come across any question, just pause for 30 seconds and think about the question before you actually start. So, in the exam, you must follow the similar procedure. So, you should not just start the question for the sake of it. कि question आया और शुरू हो गए. No, just give it 30 seconds. ठीक है? And then start. And NEET students might should give less than 30 seconds, at least 10 seconds or something to start the physics question at least. But JEE students has more time for questions, so they can give at least 30 seconds to start to think about the question, how to approach the question. Okay. So for example, let's start this question. Very good one, very tricky, and you should be able to figure it out what to do. Okay, so let's start. A bullet is fired horizontally with speed v naught. एक bullet है fire किया गया horizontally as you can see v naught with speed v naught just above the top of a fixed sphere of radius r equal to 5 meter. जब भी कभी limitation दिया हो just above ऐसे just above the top of a fixed sphere आप इसको just मान लो कि हाँ उसी पे ही है इस point पे ही है ठीक है for the sake of easy easy to understand. Okay, so you have to फॉर योर ओन से कि जल्दी से समझ में आ जाए तो आप उसी पे लिमिटेशन वाले केस में मान लिया करो ठीक है. लेट्स ओके रीड फर्दर. what is the minimum value of v naught? So emphasize while reading the question in your mind, emphasize what is the minimum value. इसको emphasis लेना है. minimum value of v naught for which bullet does not touch the sphere. okay, does not touch the sphere के बाद आपके माइंड में एक इमेज बन जाना चाहिए कि ये v naught प्रोजेक्टाइल करेगा. तो कैसे करे कि ये यहाँ पे लिखा है बुलेट डज नॉट टच द स्फीयर ना आप टच कराओ यू जस्ट एज्यूम दैट इट विल जस्ट टच ठीक है. देन यू डू द क्वेश्चन बोथ आर सेम कंडीशन. डज नॉट टच मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट से करो सो डज नॉट टच ठीक है. दैट मीन्स यू मेक इट टच जस्ट टच ठीक है. डू नॉट लेट इट नॉट इम्पैक्ट बट let it just touch the sphere. So this is the sphere that you are seeing. I have made it. So you were given in diagram in the picture except this velocity. Okay, so this is a numerical value type question. Okay, आप एक बात सोचो v नॉट से प्रोजेक्टाइल हो रहा है इवेंचुअली इट इज गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड राइट. अगर आप ये ग्राउंड मान रहे हो okay this is the sphere and this is the 5 meter. 5 meter is a long radius. आप माइंड में देखो 5 meter is a long length. तो 5 मीटर रेडियस है. ये बुलेट इवेंचुअली कहाँ गिरती मान लो ऐसे गिरती राइट ठीक है समवेयर हियर यहाँ पे. तो आपको तो ये तो वेलोसिटी मिनिमम नहीं हुई आपने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक दिया ठीक है. चलो और कम वेलोसिटी करते हैं ये टच नहीं कर रहा है राइट. और कम वेलोसिटी से करते हैं ठीक है. अभी भी ज़्यादा है आप और वेलोसिटी और कम वेलोसिटी से करो ठीक है. So finally coming to the point, it should be able to reach somewhere. Please forgive me for my drawing. Okay, I made it finally. Right. So this is the point. यहाँ पे जैसे ही इसको जस्ट टच करेगा स्फीयर को ये बुलेट ठीक है. तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी आप सोच के देखो. इसकी एक ही कंपोनेंट वाली वेलोसिटी होगी दैट इज v नॉट एंड इट इज इन विच डायरेक्शन वर्टिकल. दिस इज vy and what is the vx here 0. this is the condition that you have to figure it out. और v नॉट कितना है यहाँ पे vx इक्वल टू v नॉट और vy क्या है 0. आपको बस इतनी जर्नी में प्रोजेक्टाइल लगाना है एक क्वार्टर ऑफ द स्फीयर की जर्नी में प्रोजेक्टाइल लगाना है. चलो लगाते हैं यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो हमारी कंडीशन है यहाँ तक आने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितना कवर करेगा रेडियस के बराबर और v नॉट इंटू लेट से टाइम कितना लिया t. यही तो होता था राइट वेलोसिटी इंटू टाइम.
There is no acceleration in the horizontal direction, right? Now, tell me one thing. What is this use of this condition Vy? Okay, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से वेलोसिटी वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो जाती है, दैट वुड बी योर कंडीशन। सो वेलोसिटी वर्टिकल होने में क्या हो जाएगा, यहाँ से v फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r ट्रेवल करने में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में आप लगा दो, क्या लगाओगे, वेलोसिटी, ये इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में आप लगाओगे तो क्या हो गया, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज v नॉट, इनिशियल इज 0 प्लस g इंटू टाइम। ये टाइम कितना लगा, जीरो वर्टिकल वेलोसिटी से वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट होने में कितना टाइम लगा, उतना ही जितना इस बुलेट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना r ट्रेवल करने में लगा। आप सोच के देख लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जीरो वर्टिकल वेलोसिटी से v नॉट वर्टिकल वेलोसिटी में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा बुलेट को r हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, राइट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, r। तो v नॉट t इक्वल टू कितना आया, v नॉट अपॉन g, राइट? t की वैल्यू यहाँ रख दो, व्हाट आर यू गेटिंग, r इज इक्वल टू v नॉट इंटू v नॉट अपॉन g। r कितना है, 5, v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 5 इंटू जी। एक बात बताओ, 5 इंटू 9.8 करो, 5 8 जब 40, 5 9 जब 45 प्लस 4 49.0, what did you get, 7 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए v नॉट की, 7, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इट विल जस्ट टच कह लो या फिर इट डज नॉट टच द स्फीयर, राइट? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए, देखने के लिए, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लियर योर डाउट। ओके, क्लियर योर डाउट फॉर जेई एंड नीट यूजी, एंड ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दे विल गाइड यू टू द राइट सिलेबस। आई ऑलवेज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू मस्ट प्रैक्टिस। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपके पास कम समय है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द ओनली मीन्स दैट इज गोइंग टू गेट द सिलेक्शन। ओके, आपके लिए सिलेक्शन का बस एक ही रास्ता है, be precise, be concise with your syllabus, and that will be your PYQs. Okay, so previous year questions solve karte raho. If you have any doubt, do ask. I always emphasize. Believe me, this you can ask any faculties, and in my teaching experience, I will always suggest my students to follow previous year question paper. So thank you so much for watching the video. Do share the video. Do subscribe to my channel. Okay, do ask your peers to subscribe my channel, and just share the video so that a lot of students can get the benefit of from my solutions, my explanations. Thank you so much.